this is going to be the last video of mine on this channel. It's been 4 years to me creating content on YouTube and Instagram, and yeah, my channel has not been monetized yet. YouTube is not at all for the small creators like आप एक दिन में माला माल बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. I'm just done with YouTube and I'm closing my channel for and all. To know why this all is happening and why am I doing it now, let's just go थोड़ा सा पीछे. So कहानी है 4 साल पुरानी. November 2022 when I started my YouTube channel and I have uploaded my first YT video on this channel. My friends, I would say my batchmates from my college really motivated me a lot. I still have some screenshots of those messages where they used to send me and they were like, wow, Samidha, we are so proud of you. The editing skills of yours are so mind-blowing. We just love it. Keep growing. Just go on. Don't stop and all those things. And genuinely speaking, that motivated me a lot at that time. But now, sitting here in the present, it just a blurred memory in my head and nothing else. I would say half of my first year college was really good. I was consistent also. I was experimenting with myself on my both the platforms YouTube and Instagram. Okay, and my relatives knew about my channel also. And let me tell you, my Instagram channel that I have right now is the one only which I had during my school days, and मैंने उसी को continue किया. I didn't make any new Instagram account. Okay, I didn't make any Instagram account. Usually people just block their relatives and friends. I didn't block any single one of them. I was just like, okay, I just don't care about the negativity that I get from them, but I also have some of the good relatives which really motivated me and they used to push me also. But there used to be some evil relatives also which used to irritate me a lot and used to speak a lot about myself behind me. Okay, मेरे पेरेंट्स पे जाके मेरी बुराई करते थे मेरे पेरेंट्स से. And I used to be like, भाई साहब कैसे लोग हैं यार ये, मतलब seriously I just couldn't believe that thing. भाई, this is me first time speaking to all of you like this, but भाई यार सच्ची में कैसे लोग हैं ये और ये कैसे कर लेते हैं. I just don't even understand that thing. And now, okay, fine, let's go. Let's leave now, that thing. I had my first terminals, okay, and my result was okay. Let's not talk about. I'm not going into academics thing right now. So yeah, my result was good, but it didn't meet my expectations. No, getting 50% in MBBS means hats off to you. You passed your results. You passed it, and that's only matters in MBBS. Just keep moving forward. That's the only motto of MBBS is. And मैं आगे बढ़ती गई. ठीक है, I also aced my first terminals, then second terminals, and I was passed with good grace in my first prof exams, and I was now into second year. And let me tell you, that was a surprise for myself also that I was able to ace that. भाई मेरा जो बीपी फर्स्ट ईयर में ऊपर नीचे हुआ है ना, बहुत हुआ है. एंड नाउ आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू इज़ दैट कि मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी उस ईयर में बहुत ऊपर नीचे हुई. आई यूज्ड टू बी मेकिंग वीडियोज़. फर्स्टली आई यूज्ड टू बी मेकिंग वीडियोज़ विदाउट नोइंग दैट व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोना से टू मी, व्हाट अदर स्ट्रेंजर्स इज़ गोना सेइंग टू मी, व्हाट एवरीवन हैज़ अ व्यू अबाउट इट फ्रॉम मी. ओके, आई डिडंट केयर अबाउट इट. But when I started knowing people, I started developing new friends in my college life, and relatives started saying something about me behind my back to my parents. It started, just forming something in my mind. And धीरे slowly and slowly I started getting slower and slower. Yep, it started getting affecting me. And मैं जो content creation की journey में बहुत ज़्यादा like I was experimenting, doing a lot of things. And let me tell you, I bought a tripod light in my first year. And whenever I used to be coming home, I used to be traveling with that light with me to my home. मैं घर पे videos बनाती थी, कुछ ना कुछ makeup की या फिर कुछ भी बनाती थी, dance की videos. And then I used to be editing and uploading them while I was in hostel. तो मैं content अपना shoot करके जाती थी घर से. And मैं उस light को लेके आती थी अपने साथ. फिर एंड मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली माई मदर. शी इज़ सच अ सपोर्टिव वुमेन. लाइक आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्रेस दैट यू ऑन द कैमरा. एंड उन्होंने इतना सपोर्ट किया. शी वाज लाइक, ठीक है, मेरा मेकअप ले ले, तू ये कर ले, वो कर ले. एंड शी हैज़ सपोर्टेड मी सो मच. ओके, एंड आई यूज्ड टू बी डूइंग दिस ऑल दोज टू एंड फ्रो. में जाती रहती थी मैं अपने साथ, मेरा सामान आता था, मैं जाता था. ओके, पापा भी
पापा, आई वुड से इट वाज मोर ऑफ अ 50-50 विद माय डैड, कि कभी वो सपोर्ट कर रहे कभी वो नहीं कर रहे. हिज जस्ट वन गोल इज़, वन मोटो इज़ दैट योर स्टडी शुड नॉट अफेक्ट फ्रॉम दिस थिंग. ओके, एंड यही बात मेरे ना दिमाग में ना ऐसे ना घुस गई थी, पता नहीं क्यों, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, एंड मैं स्लो गई, मैं कंटेंट इतना नहीं बनाने लग गई. फिर आता है हमारा सेकंड ईयर. मेरी फर्स्ट ईयर में मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरी फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारी वीडियोस थी ऐसे जो वायरल हुई थी. देयर वाज सम मेकअप वीडियोस, सम फनी वीडियोस दैट आई मेड विद माय बैचमेट्स, मेरी अपने दोस्त के साथ बनाई है. दिस वाज दिस वन पर्टिकुलर वीडियो व्हिच आई अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम व्हिच जस्ट मेड मी सो लाइक हाइप्ड एंड पंप कर दिया था भाई ऐसे इसने वीडियो ने, कि मैं आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, बनानी है अब तो इंस्टा की वीडियो और करनी है. फर्स्ट ईयर तक मेरा ठीक था कंटेंट. सेकंड ईयर जब मैं आई, लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग विद मी इन माई हॉस्टल, इन माई होम, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जस्ट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी. मेरी मेंटल हेल्थ लिटरली आई वुड से वॉज डिस्टर्ब्ड एट दिस टाइम. मेरे हॉस्टल की बात करती हूँ मैं, तो आई स्टार्टेड लूजिंग माई फ्रेंड्स. ओके, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड स्टिंग अवे फ्रॉम मी, बिकॉज मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन भी करना था, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी थी. अगर मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाती या फिर मेरी बैक आ जाती पेपर्स में, कुछ भी हो जाता, सो आई वुडेंट हैव सर्वाइव्ड इट. ओके, मेरे घर वाले भाई मेरे को ये करने नहीं देते, मेरे को एक कैमरा उठाने नहीं देते मेरे घर वाले. अगर कुछ हो जाता भाई, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो जाती. एंड लेट मी टेल यू, माई मेन गोल इज़ टू बी अ डॉक्टर, बट आई लव टू मेक वीडियोज़. माई पैशन इज़ टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, बट आई कॉन्ट अफोर्ड टू गिव अप माई स्टडीज़. आई कॉन्ट अफोर्ड टू बी अ डॉक्टर. मैं भाई वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना मुझे, कि सब कुछ अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ और कैमरा उठा के बस कैमरे में लग जाऊँ पीछे. नहीं, मुझे दोनों लेके चलना है. मुझे भाई दोनों ही करने हैं साथ में साथ. मैं दोनों में लुढ़कूँ या ऊपर जाऊँ, कुछ भी हो भाई, मेरे को करने तो करने दोनों हैं. सिंपल सा फंडा था मेरा. And now when I came into second year, my roommates also changed. Okay, so second year में भाई इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो चुकी थी मेरे साथ, मेरी मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे. फर्स्टली आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर. ठीक है भाई, सुनने में बहुत इजी लगता है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और मतलब भाई मतलब मैं कैसे कहूँ, मतलब सुनने में बहुत इजी होता है कि यार तुम डॉक्टर हो, तुमने तो डेथ देखी होगी. हमने यार सब कुछ देखा है, कैडेवर देखा है, कैडेवर काटना देखा है, सब कुछ करा, उसका डायसेक्शन करा है अच्छे से हमने. ठीक है, हमने डेड बॉडी भी देखी है, हमने एम्बुलेंस से उतरते हुए एक डेड बॉडी भी देखी है, रोते हुए रिलेटिव्स भी देखे हॉस्पिटल के बाहर. I have seen everything, but when the death hits your family, when God just takes away your family member, that thing, भाई मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी. इट वॉज ऑफ एन ICU रूम. माई ग्रैंड फादर वॉज देयर इन द ICU, एंड आई वॉज सो इमोशनल एट दैट टाइम. लाइक मैं अगर नॉर्मली हॉस्पिटल में अपनी एज अ ड्यूटी कर रही हूँ डॉक्टर की, और मैं खड़ी हूँ और हॉस्पिटल में कोई और इंसान, कोई और स्ट्रेंजर्स देयर इन दैट ICU रूम, आई वुड नथिंग वुड बी अफेक्ट मी, नथिंग. सीरियसली टेलिंग यू, इट वुड नॉट अफेक्ट मी. आई वुड जस्ट बी हैविंग दैट एम्पैथी विद ऑल द रिलेटिव्स, बट नथिंग एल्स. बट व्हेन योर रिलेटिव, व्हेन योर फैमिली मेम्बर इज देयर ना, डॉक्टर भाई सब हो जाते हैं. अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं लोग बाग कि अगर डॉक्टर का कोई रिलेटिव है ना उस हॉस्पिटल बेड में, उस OT के अंदर, वो उस ऑपरेशन नहीं कर सकता. भाई सही बात है, मेरे हाथ तो कांपने लग जाएंगे. आई कांट डू दैट, नो सॉरी, आई कांट. सो जस्ट सेम थिंग हैपेंड विद मी इन द सेकेंड ईयर. माई ग्रैंडफादर वेंट अवे. ओ एंड सबसे पहले मतलब लाइक यार ऐसे ही, मतलब मैंने इतने पास से डेथ को देखा. I just can't tell you. I can't tell you how our family just ऐसे बिखर गई भाई, ऐसे बिखर गई. First time I saw my father crying, and it hit me a lot. I was just away from the home. मैं hostel में अकेली, and it just hit me. No one, I would say at that particular time there was no one. If I would say यार friends होते हैं भाई, नहीं ये snake tree लग रखा है तुमने, ये ऐसे ही दोस्त होते हैं सारे सांप वाले. ठीक है, there was no one single person in the hostel who just stood by me. There was no friend of me. मेरी hostel और मेरे रूममेट की भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे थे. ठीक है, आई वाज जस्ट इन अ टॉक्सिक लूप होल, आई वुड से एट दैट टाइम, एंड इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी अ लॉट. एंड कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे मेरे भाई के साथ, मेरे घर में भी इश्यूज़ थे, एंड आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद ऑल दोज थिंग. एंड उस टाइम पे वीडियोज़ बनाना वॉज नॉट समथिंग, आई वाज जस्ट नॉट एबल टू डू इट. ओके, नाउ यूट्यूब में क्या होता है आपका, कि आपको 1 ईयर तक ना, ये से YT की लॉन्ग वीडियोस आपको मोनेटाइज हो सकते हैं. आपके 1 ईयर तक आपके जो भी व्यूज़ आए हैं YT की लॉन्ग वीडियोस पे, वो सारे YT की लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ काउंटेड रहते हैं 1 ईयर तक. बट इन दी शॉर्ट्स फॉर्म में आपके यूट्यूब पे वो व्यूज़ काउंटेड रहते हैं जस्ट फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के बाद, ओके 3 मंथ्स हो चुके हैं, उसके बाद 4th मंथ के फर्स्ट डे पे वो सारे व्यूज़ नील हो जाएंगे. समझे आप कि मेरी एक वीडियो आई है वायरल हुई, इट हैज़ 10K व्यूज़. अब वो 10K व्यूज़ काउंटेड रहेंगे YT के वीडियोज़ में टू गेट मोनेटाइज माई चैनल.
जस्ट फॉर 3 months, फोर्थ मंथ से वो व्यूज़ हट जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो मुझे ये बात नहीं पता थी। आई वाज लाइक ठीक है, वीडियोस बनाते जा, कभी ना कभी तो मोनेटाइज होगा ही भाई चैनल अपना। तो भाई वो होता ही नहीं था। एंड देन आई जस्ट रियलाइज, ओ दिस इज समथिंग न्यू। भाई ऐसा भी कुछ होता है। Let me tell you, I have watched thousands of videos how to get my channel monetized, and none of those videos they are not true, they are fake हैं सब कुछ नहीं होता। एक वीडियो से भाई मोनेटाइज हो गया चैनल, नहीं मेरा तो नहीं हो रहा। भाई कैसे इनका लोगों का मोनेटाइज हो रहा है चैनल, एक वीडियो से नहीं हो रहा। इट्स लिटरली फेक। आपका खुद का एक वीडियो से मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल, एंड दे जस्ट कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड जस्ट स्प्रेड फॉल्स एंड नेगेटिविटी टू द अदर क्रिएटर्स। दैट्स व्हाट आई वुड से। आई डोंट नो व्हाई, बट भाई ऐसा ही है। सच है, कड़वा है, बट यही सच है। फिर सेकंड ईयर के बीच से आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस और कंटेंट क्रिएशन में ना वीडियोस पे थोड़ा कम बनाने लगी थी, मैं स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। नाउ माई फ्रेंड स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम बीइंग कॉम्पिटिटिव नाउ। ओके, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही थी फ्रॉम ऑल दोज टॉक्सिसिटी एंड जस्ट गोइंग डीप इन टू द स्टडीज, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम बीइंग कॉम्पिटिटिव फ्रॉम दैम, एंड दे जस्ट पुश मी टुवर्ड्स द साइड। भाई कैमरा के एंगल से निकाल दिया था उन्होंने मुझे, लाइक सीरियसली दैट्स व्हाट वाज माय फ्रेंड्स वर। एंड आई वुड से ओके फाइन, मैं भी थोड़ा याद दूर होने लग गई थी, मैं अपनी हर चीज़ नहीं बताने लग गई थी उनको। आई ऑल्सो थिंक मेरी भी कुछ गलती थी उस टाइम पे, बट आई वॉज नॉट इन दो स्टेट कि मैं यार अपनी हर चीज़ एक्सप्रेस करूँ। आई स्टार्टेड थिंकिंग भाई सामने वाले इंसान को अगर मेरे बारे में मतलब अगर उसको समझना है तो यूँ ही समझ लेगा मुझे, वरना तो छोड़ो, वो तो वैसे भी नहीं समझ सकता। फिर इट वॉज सिंपल एज दैट। में पढ़ाई में तो ज़्यादा घुस गई थी। आई इवन गॉट डिस्टिंक्शन इन पैथोलॉजी इन प्री प्रॉफ्स, एंड भाई इतनी गंदी नज़र लगी मुझे कि भाई प्री प्रॉफ और प्रॉफ के बीच में जो टाइम था, उस टाइम पे मैं बस बुखार में पड़ी हुई थी अपने हॉस्टल के कमरे में। दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। नज़र तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कमीनी चीज़ है, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। एंड तो सेकंड ईयर का मेरा कंटेंट का क्रिएशन की जर्नी आई वुड से इट वाज मोर ऑफ लाइक दिस। कभी एक वीडियो आके कभी नहीं आई, 5-6 महीने हो गए नहीं आ रही है, कभी आ गई कभी नहीं आ रही है, ऐसा सीन था। जब आई मेक वीडियोज़ व्हेन आई एम हैप्पी। ओके, अगर मैं खुश हूँ जब तो मेरी वीडियोस में खुशी आएगी ना, जब तो आप मेरी वीडियोस को देखोगे, देन ओनली यू विल गेट हैप्पी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस व्हेन आई मेक वीडियोस देन ओनली जब मैं खुश हूँ। नाउ कम्स ना थर्ड ईयर। ओके, थर्ड ईयर वाज अमेजिंग, लाइक सो अमेजिंग। एंड लेट मी टेल यू, मेरे सेकंड ईयर में, मैं ये भी बताना भूल गई यार, मेरे सेकंड ईयर में पता है आई लॉस्ट 3 मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। 3 मेंबर्स, समझ रहे हो तुम? वो साल मेरा इतना गंदा था पूछो मत। मैं मेंटली एग्जॉस्ट थी। आई जस्ट couldn't मेक वीडियोज़ और एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं अगर हॉस्टल जाती थी तो मैं रूम में नहीं रहती थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइक इट वॉज स्टार्टेड अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। एंड मैं स्टडी रूम में बस पढ़ती रहती थी। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैं वहाँ पर मेरे दूसरे बैचमेट्स ने देखा कि मैं वहीं पे यार सो रही हूँ, मैं वहीं पे सो जाती थी, वहीं पे मैं पढ़ रही हूँ, मैं पूरे दिन वहीं पे रहती थी। मैं बस रात को अपने रूम में जाती थी सोने के लिए। ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी सेकंड ईयर में। अगर मैं अपने हॉस्टल में नहीं हूँ, वरना मैं घर में रहती थी, किसी और फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है। इट जस्ट यूज्ड टू बी दिस सिनेरियो टू throughout the second year, and I was exhausted. I was mentally exhausted. Now comes the third year, which बहुत खुशियों के साथ आया वो। Let me tell you, my brother got married in that year, and I was just so happy. My family was happy. I was at the top level. आसमान पे थे मैं भाई, मेरे ज़मीन पे पैर थे ही नहीं। एंड मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए थे, ठीक है। आई हैड वेरी लेस फ्रेंड्स आई वुड से। एंड मैं हर वीक घर आ जाती थी। मैं हर वीक ऐसे फुदक के घर आ जाती थी। ग्रेटर नोएडा से आगरा आ गई भाई, ऐसे फुदक के आ जाती थी मैं, पूछो मत। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग होम इंडिपेंडेंटली। भाई मैं अकेले घर आ जाती हूँ। मेरे पापा मुझे घर से ना चौराहे पे जाने नहीं देते हैं, कि चौराहे पे ना कुछ वाइन की शॉप है हमारे इधर और सब कुछ। नो, द सोसाइटी माहौल अच्छा नहीं है, बट मेरे पापा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो मुझे ग्रेटर नोएडा से आगरा आने को, ही इज़ ओके विद दैट। ही इज़ लाइक तू कर लेगी, मुझे भरोसा है तुझ पे, तू आ जाइए आराम से। एंड दैट्स how the third year started with all the shenanigans and all dancing and all. Yeah, so my like third year का हाफ तो मैं कहूँगी ऐसे निकल गया था भाई कि मेरे घर में भाभी आई हर त्योहार भाई। पहला त्योहार शादी के बाद, पहला ये है, पहला दशहरा, पहली दिवाली, पहली होली, पहला राखी, ये वो फलाना ढिगाना भाई। कहते हैं शादी सिर्फ 5 दिन का वो है भाई। नहीं, किसने कह दिया शादी सिर्फ 5 दिन की शादी होती है? पूरे साल भर की है भाई। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता था हमारे घर में, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और मेरे को तो ऐसे बुला लेते थे, आजा, और मैं भी हर हफ्ते आ जाती थी मैं। सो दैट्स हाउ माई थर्ड ईयर वेंट इन ऑल दिस थिंग्स ओनली। सो मैं थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह डालने लग गई थी, थोड़ी बहुत ही डाली थी। बट यू नो व्हाट इट स्टार्टेड हैपनिंग वाज दैट कि मैं अपने फ़ोन में वीडियोस बनाती थी, बट मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता था। अब वो टाइम लाइन ना खत्म हो चुकी है। अब मैंने कोई वीडियो बनाई है सर्दी में, ठीक है। अब मैंने जैन के महीने में वीडियो बनाई है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर एग्जाम्पल ओनली, कि मैंने जैन में मेरे कजन भैया की शादी थी, मैंने जब वीडियो बनाई। अब भाई वो तो उस टाइम पे तो मैंने सर्दी के कपड़े पहन रखे ना, अब वो मैं अभी तो डाल नहीं सकती ना। सब लोग कहेंगे भाई कौन सी शादी है तो सर्दी में ऐसे इसने कपड़ों पहन के बना दिया। भाई यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों के पसीने निकल रहे हैं, और ये स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के वीडियो डाल रही है। टाइमलाइन मैच नहीं हो रही है भाई। सो मेरे साथ यही होने लग गया कि मैं वीडियोस तो बनाती, बट आई डोंट
गेट दिस मच ऑफ टाइम कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। एक तो मेरे फ़ोन के साथ स्टोरेज इशू आने लग गए कि मैं फ़ोन में वीडियोज़ बना देती थी, अब उसको एडिट करने के लिए भाई ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अगर मेरी एक वीडियो 10-15 MB की बनी है और जब मैं उसको एडिट करूँगी, सारी क्लिप्स को एडिट करा मैंने एंड उस क्लिप्स को एक्सपोर्ट करूँगी और मैं जब अपलोड करूँगी कहीं पे भी कोई और ऐप पे लाइक YT और इंस्टा, तो मुझे वो एक्सपोर्टेड वीडियो ही मेरी 1 GB की बन जाती थी। सो आई नीड एटलीस्ट 2-3-4-5 GB की स्टोरेज मेरे फ़ोन में मुझे चाहिए ही चाहिए जब भी मेरी अपलोड हो पाती है। और मेरी तो भाई 99% से 98% नहीं जाती है फ़ोन की स्टोरेज, तो मैं ये 5 GB कहाँ से लाऊँ? This started happening with me, and I love to record myself, everything that is happening with me around the world is just me, for me a memory, and मैं memories को इतना ज़्यादा collect करती हूँ through videos that तुम मत पूछो मुझसे। So I started recording everything. I was like ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई नहीं कर देंगे अपलोड आराम से। अब भाई वो टाइमलाइन निकल जाती थी, अब मैं क्या ही मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ, मैं फाइनल ईयर में क्या मतलब मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो क्या डालूँ, मुझे जानना है, बताओ कैसे डालूँ मैं। सो अब हम फाइनल ईयर में 4th ईयर में आ चुके हैं एंड अब मैं अपन कहूँगी कि डाल दो यार, कोई नहीं, टाइमलाइन इधर उधर होती है, डाल दो। लेट मी टेल यू, मैंने अपनी डाली थी वीडियोज़। मैंने दिसंबर में इलेक्टिव्स थे मेरे 3rd ईयर के बाद। वी हैव इलेक्टिव्स विच इज़ वी गो टू हॉस्पिटल, ओके, एंड वी जस्ट डू अ ड्यूटी देयर, ओके, वी जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट्स, वी गो ऑन राउंड्स विद द डॉक्टर्स, दैट्स व्हाट हैपेंस इन द इलेक्टिव्स। एंड मैंने इलेक्टिव्स के टाइम पे आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ एंड आई जस्ट हैड देन थिंक 30 डेज़ के लिए अपनी इलेक्टिव्स है और 30 डेज़ के लिए आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ। एंड मैंने वो रिकॉर्ड करके ना जनवरी में डाला था, ठीक है, दिसंबर में मेरे इलेक्टिव्स थे और मैंने वो जैन में डाली क्लिप्स अपनी सारी। माई सीनियर स्टार्टेड डाउटिंग दैट कि भाई इनके 22 बैच के तो अभी भी इलेक्टिव चल रहे हैं। मेरे से भाई सीनियर्स मेरे से लिफ्ट में कहते थे तुम अभी फाइनल ईयर में तो आए हो नहीं, तुम्हारी इलेक्टिव चल रहे हैं, और मैं ऐसे नहीं मैम आ गए, हम तो 1 महीना हो गया, हम तो आ गए। And I used to be like भाई नहीं आ चुके हैं। दैन वन सीनियर सेड टू मी भाई नहीं तुम्हारे तेरी भी, एंड लेट मी टेल यू आई एम वायरल इन माई सीनियर बैच, आई डोंट नो, आई एम वायरल, ओके। मेरे को इंट्रोज में भी फर्स्ट ईयर में बुलाया जाता था इस बात के लिए कि भाई सुमेधा को बुलाओ, वो लड़की जो वीडियो बनाती है उसको बुलाओ। And let me tell you, I'm not the only one who makes videos in that batch. There are a couple of more students who make videos in that batch. Used to make videos in that batch in the first year. अब उन्होंने quit कर दिया basically, तो वो videos नहीं बनाते हैं, ठीक है। And I was shocked. I was literally shocked when my senior told me this during the lift कि भाई तू तो भी 3rd ईयर में हो ना, तुम्हारे तो इलेक्टिव चल रहे हैं ना, अभी तुम फाइनल ईयर में तो आए नहीं हो। Then I just told her कि नहीं मैम हम फाइनल ईयर में आ चुके हैं। Then she said to me भाई तेरी वीडियोस ना हमारे ग्रुप में वायरल है भाई, तू तो डालती कि आज इलेक्टिव में ये हुआ, आज ये हुआ, वो हुआ, अभी तो तुम्हारे इलेक्टिव चल रहे हैं ना। आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम। भाई टाइमलाइन का ये फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो तुम। सो आई कांट अपलोड वीडियोज़ हेयर एंड देयर, आई कांट। एंड नाउ मेरे में सीरियसली हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करूँ। आई एम नाउ स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ माई MBBS कोर्स, जहाँ पे भाई नदी पार हो जाएगी या नदी में डूब जाऊंगी मैं, ऐसा है। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ माई स्टडीज़ फर्स्टली, एंड आई ऑल्सो कांट step back and stop making videos. I seriously, there are times when I make videos of me just studying and nothing is there. मैं बस पढ़ रही हूँ cause मैं उससे productive रहती हूँ। एक तो मैं फ़ोन नहीं चलाती, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है मेरा मुझे, तो I can't use my phone, so it's just productive to me. It's a productive session for me, and I just can't stop making videos, but I can't make videos. I also even thought of hiring an editor, okay, so वो मेरी videos बना देगा भाई, लेकिन यार इतना खर्चा है ना, पूछो मत, it's not 100-200 रुपये में तो कोई वीडियो एडिट कर नहीं रहा है भाई, सही बताऊँ मैं तुम्हें तो। एंड मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपने ऑलरेडी इस यूट्यूब के लिए, दैट आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मोर मनी फ्रॉम माई डैड कि भाई पापा थोड़े और पैसे दे दो, मुझे अब एडिटर हायर करना है। सॉरी, आई कांट डू दैट ऑल्सो। So I am standing on this crossroad where I think I have 2 options. The first one being that कि मैं छोड़ दूँ ये सारी चीज़ें, just let's quit YouTube. The second thing is that let's start everything from again, which really sounds good in the head, but it's not easy. It's not something which I am planning to commit to you all. So I think this is going to be the last video of mine on this channel. I know I don't have much of views. I know I've definitely scored a milestone on my subscribers count from 500 to 1K, 2K, 4K, 5K कब हो गए पता नहीं भाई, लेकिन माई चैनल हैव नॉट मोनेटाइज येट। अब कोई ये भी कह सकता है कि यार चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना भाई तूने YT थोड़ी ना मोनेटाइज के लिए बनाया था स्टार्टिंग में। मैंने कहा हाँ भाई मैंने नहीं स्टार्ट करा था यूट्यूब जस्ट टू गेट मोनेटाइज, it was because I love making videos and I just wanted to show up myself on the internet, that's it, okay. But now at this point, sorry, but I want to get my channel definitely monetized. मुझे चाहिए भाई अपना चैनल monetize. So yeah, I don't know what I'm gonna do. I usually just get 30 or 40 views ही मुझे अपनी YT के long videos में आ रहे हैं अब. So I don't think so anyone is gonna be watching this video. I don't think so anyone is gonna be commenting on this video. That's a final goodbye from me to you.